Hello students, assume all of you will be well. आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. The name of the chapter is electrochemistry. It's very much important for examination point of view. The weightage of the chapter is 5 marks. From this chapter, definitely you are getting one or two numericals as well as the subjective question too. Electrochemistry नोट्स हमने दिया हुआ है. यू कीप द नोट्स बिफोर यू. सम ऑफ द थिंग्स जो हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे हो सकता है वो नोट्स पे न मिले, तो यू कैन नोट डाउन इन दैट पेपर. अपने नोट्स में उसको ऐड कर लेना. बिकॉज वीडियो है, कई बार इसको चला के आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं. ओके, लेट मी कम टू द टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द branch of chemistry which deals with the conversion of chemical energy into electrical energy and electrical energy into chemical energy. That is, it is a branch chemical energy into electrical and vice versa. That is, and electrical energy into chemical energy. This branch is very much important. Under this branch, we will discuss the three very important aspects. The first one is electrochemical cell. यहाँ पे लिखा हुआ है. After that, we will discuss electrolytic conduction and finally we will discuss electrolysis. The first and second one are very much important. Conversion of chemical energy into electrical energy comes under the process that is called as spontaneous process or spontaneous reaction, and for example the example is electrochemical cell. So, conversion of chemical energy into electrical energy is spontaneous process. Spontaneous process. Spontaneous process का मतलब the process or the reaction in which the electricity will be generated till the chemical substance should be available or the chemical energy will be available. Once the process starts, it will be continue till the chemical energy or the chemical substance get completed or adjusted. Such type of the process is called as spontaneous process. Just for example, घरों में आप लोगों के बैटरी होती है. बैटरी एक बार चलती है तो चलती चली जाती है, तब तक चलती है जब तक कि पूरी बैटरी 100% डिस्चार्ज नहीं हो जाती. So that's why that process is called as spontaneous process. Second one, so spontaneous process का एग्जांपल आ गया इलेक्ट्रोकेमिकल से. इसका डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है. लेटर आई एक्सप्लेन दैट वन. Second one is conversion of electrical energy into chemical energy. This process is non-spontaneous. ये नोट्स में लिखा हुआ है non-spontaneous process कहते हैं इसको. Non-spontaneous का मतलब क्या होगा? केमिकल रिएक्शन तभी तक होगा जब तक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है. यानी अगर इलेक्ट्रिसिटी 5 मिनट के लिए फ्लो की उसके बाद स्टॉप, तो केमिकल रिएक्शन भी स्टॉप हो जाएगा. अगर हमने 10 मिनट तक के लिए फ्लो किया तो केमिकल रिएक्शन भी 10 मिनट तक होगी, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा. So such type of the process is called as non-spontaneous process, and the example for this one is the electrolysis. And the device that we use is called as electrolytic cell. दोनों में अंतर है. The first one is the electrochemical cell and the second one is the electrolytic cell. ये हम दोनों को डिस्कस करेंगे इसमें. Besides these two very important part, we will discuss electrolytic conduction too. कि केमिकल प्रोसेस में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कैसे होता है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. So electrochemistry is the branch of science, branch of chemistry in which deals with the conversion of chemical energy into electrical energy and vice versa. When chemical energy converted into electrical energy, the
process is spontaneous. An example of that one is electrochemical cell. While electrical energy converted into chemical energy, the process is non-spontaneous, and the example for that one is the electrolytic cell. It's alright? समझ में आ गया होगा? Now let me proceed on. What is the importance of electrochemistry? Importance देखा जाए क्यों? So many importance are there. सबसे पहला importance metal industry. Extraction and purification of metals is carried out by electrochemical methods. For example, sodium, magnesium, calcium, aluminium, copper, silver, ये सब इनमें जो सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से, एल्युमिनियम, कॉपर एंड सिल्वर को एक्सट्रैक्ट भी करते हैं साइमल्टेनियसली इसकी प्यूरिफाई भी करते हैं. दैट इज द फर्स्ट इम्पॉर्टेंट. आफ्टर दैट सम ऑफ द केमिकल सब्सटेंसेस लाइक NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लोग कॉमर्शियली प्रिपेयर करते हैं. कॉमर्शियल प्रिपरेशन as well as some non-metals like chlorine, इसको भी हम लोग कॉमर्शियली प्रिपेयर करते हैं बाय इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से. दैट इज इम्पोर्टेंट. तीसरा देखा जाए, अभी हमने कहा बैटरीज एंड सेल्स. सेल्स जो हम लोग टॉर्च वगैरह में यूज करते हैं, घड़ी वगैरह में यूज करते हैं. बैटरी जो घरों में होती है, these are very much important devices, and from this one we are getting a continuous supply of electricity. These are very much important. ये जितनी भी रिएक्शन होती है that comes under the electrochemistry, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंडर में जितनी भी रिएक्शंस आती हैं, केमिकल रिएक्शन, they are energy efficient, they are less polluting and eco-friendly. ये सब नोट्स में लिखा हुआ आप लोगों के. दैट इज द थिंग. तो ये जितना डिस्कस है ये तो नॉन लिविंग वर्ल्ड का हो गया. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हैज ए वेरी वाइटल एप्लीकेशन इन लिविंग वर्ल्ड टू. वो कैसे, इसको भी देखा जाए. ट्रांसमिशन ऑफ सेंसरी सिग्नल फ्रॉम cells to brain and then brain to cell. Sensory signal, all they are electrochemical in origin. ये electrochemical ही होती है. इसके अलावा communication between cells to cell, cells और cell के बीच में जो communication होता है, that is also electrochemical. So it reflects that electrochemistry branch is very much important. Either it is the non-living world or it is the living world. That's why there is a provision of discussing this chapter in 12th standard. Okay. Next देखा जाए that electrochemistry is completely based upon one of the very important reactions, that is redox reaction. Means they are reduction and oxidation reaction in origin. Completely 100%. So that's why you can say that they are very much important. Because oxidation reaction, redox reaction is the life. If no redox reaction will be there, we cannot survive at all. You know, the food that we consume under the oxidation, when it undergo the oxidation, it generates the energy, and that energy, with the help of that energy, we keep on doing our work, day-to-day work हम लोग करते हैं. So that's why electrochemistry जो है, it is completely based upon the redox reaction.
means oxidation and reduction reaction is there. So electrochemistry is quite important. You have understood. Now, first of all, after all these things, जैसा हमने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 3 पार्ट हम लोग डिस्कस करते हैं. फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सेकेंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन एंड थर्ड इलेक्ट्रोलिसिस. तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल in which chemical energy converted into electrical energy, and this is spontaneous process. Spontaneous समझ में आ गया होगा, जो ऐसी रिएक्शन तब तक होती रहती है जब तक कि केमिकल सब्सटेंस कंप्लीट नहीं हो जाता, फिनिश नहीं हो जाता, तब तक रिएक्शन होती रहेगी. Such type of the process are spontaneous process. कैसे किया जाता है? How does it? इसको कैसे सेट किया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को? Let me discuss for that one. यहाँ पे डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है. Because to draw the diagram it takes time. That's why in advance I have drawn this diagram on the board. It will be easy for you to understand. In electrochemical cell there is a provision of 2 vessels, 2 glass vessels. In one glass vessel, we are taking an electrolyte, aqueous solution of electrolyte, metal salt का aqueous solution, in which the same metal rod is dipped. यानी in this case we are taking the zinc sulfate का aqueous solution और इसमें zinc rod को dip कर देते हैं. This is the one vessel. In another vessel, we are taking another metal electrolyte, aqueous solution of metal electrolyte of copper. There is a copper sulfate and a copper rod is dipped into the solution. After that, these 2 rods are connected by means of an electric wire, conducting wire, through a key and an ammeter to check whether electricity has started to generate or not. एक ammeter भी आप लगा देते हैं. These 2 are connected by means of wire. ये हो गया. After that, there is a provision of joining the 2 vessels by means of an inverted U tube that is called as salt bridge. In this salt bridge, we are taking another electrolyte like KCl, KNO3, ammonium nitrate, ये सब इसमें दिया जाता है और इसके माउथ को कॉटन टक से क्लोज करके दोनों वेसल्स में डिप किया जाता है. इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे. ओके, सो जिंक रॉड and the copper rod has been connected by means of electric wire. इसे connect कर दिया गया and in this way the electrochemical cell is set up. Now what happens? In the first vessel, the zinc rod get oxidized. यानी zinc rod से zinc ion start to come out into the solution, electrolytic solution of zinc sulfate. तो इसमें zinc ion का बाहर आना शुरू हो जाएगा by losing electron. ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएगा यहाँ पे. एंड नाउ दीज 2 इलेक्ट्रॉन थ्रू द इलेक्ट्रिक वायर पास टू द कॉपर इलेक्ट्रोड और कॉपर रॉड. यहाँ पे क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं, टू गेन दीज 2 इलेक्ट्रॉन द कॉपर आयन फ्रॉम द सॉल्यूशन स्टार्ट टू मूव टुवर्ड्स द रॉड. ये रॉड की तरफ मूव करते हैं एंड रिसीव द 2 इलेक्ट्रॉन एंड गेट डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर रॉड. और ये कॉपर आयन जो यहाँ पे मूव करते हैं, कॉपर आयन ये मूव करके यहाँ पे दे एक्सेप्ट द 2 इलेक्ट्रॉन एंड गेट डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर रॉड. अब यहाँ पे हमने इस तरह से जो ये किया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे जिंक का मास रिड्यूस हो रहा है और यहाँ पे हमने जो यहाँ पे एक लेयर बनाई इसके चारों तरफ. इसका मतलब क्या हुआ, इस पे कॉपर डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर गेट डिपॉजिटेड. इट मीन्स इलेक्ट्रॉन गेट लॉस्ट एट द जिंक रॉड एंड थ्रू द वायर इट मूव्स टुवर्ड्स द कॉपर. कॉपर पे इलेक्ट्रॉन गेन हो जा रहा है. तो देयर इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक रॉड टू द कैथोड रॉड. एंड व्हेन देयर इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट हैपेंस, इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड, इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड. और ये इलेक्ट्रिक करंट हमें एमीटर में जो नीडल होती है उसके वाइब्रेशन से हमें पता चल जाता है. यस,
electricity is going to be generated here. Is it clear? Now next thing, it means what we find that इस फर्स्ट वेसल में now these two vessels are also called as, क्योंकि यहाँ पे जिंक पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक ऑक्सीडेशन हो रहा है, so that means this is called as oxidation half cell. Oxidation never exists in isolation. Individually oxidation नहीं होता है, oxidation always followed with the reduction, reduction always followed with the oxidation. तो जैसे अगर ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब हाफ रिएक्शन हो रही है, तो that's why it is called as a half cell, oxidation half cell. Likewise, इस केस में क्या होता है, यहाँ पे कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, बिकॉज कॉपर गेन इलेक्ट्रॉन, इसका रिडक्शन हो रहा है, तो that's why it is called as reduction half cell. अब ये दोनों हाफ सेल को कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, रिडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, एंड दैट सेल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. यानी ये पूरे कॉम्पाउंड यहाँ पे इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं. So that's why there is a oxidation half cell and reduction half cell. Oxidation half cell में क्या हो रहा है, the zinc by losing two electron converted into the zinc ion, और ये zinc ion जो होते हैं ये सॉल्यूशन में आना शुरू हो जाते हैं. Likewise in the second reduction half cell, यहाँ पे कॉपर दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर मेटल में कन्वर्ट होता है. तो यहाँ पे ये कॉपर रॉड पे कॉपर आयन जाके डिपॉजिट होता है. तो दिस इज द रिडक्शन हाफ सेल. तो ये हो गया ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन. अनदर थिंग, अब यहाँ पे द जिंक रॉड इज कॉल्ड एज एनोड एंड द कॉपर रॉड इज कॉल्ड एज कैथोड. कैथोड को पॉजिटिव से और एनोड को नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है. एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन न्यू स्टूडेंट्स आर हैविंग हियर. 10th तक पढ़ा है कि कैथोड नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है, लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड इज नेगेटिव एंड कैथोड इज पॉजिटिव. दैट यू हैव टू रिमेंबर बाय हार्ट. इसको याद रखिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है और गलतियां हो जाती है. Why it is like that? So very simply because at the zinc rod, the zinc ions leave the rod and come into the solution by losing electron. So it means electrons are lost here. That's why it acquires the negative charge. यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन को गेन किया जा रहा है, तो जब ये नेगेटिव हो जाए तो ऑटोमेटिकली इट विल बी द पॉजिटिव चार्ज. एंड एज पर द कन्वेंशन, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को एनोड कहा जाता है. एनोड, जिस रॉड पे ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड कहा जाता है. इसका मतलब ये जिंक रॉड पे ऑक्सीडेशन होता है, इसको एनोड कहेंगे, और इस एनोड का चार्ज क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया. जिस रॉड पे, जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होता है उसको कैथोड कहा जाता है, उसको कैथोड कहते हैं. लेकिन कैथोड का यहाँ पे, ये कैथोड है क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा है, तो दैट्स व्हाई इन दिस केस द कैथोड इज पॉजिटिवली चार्ज. तो दैट यू हैव टू रिमेंबर अच्छी तरीके से. तो आई थिंक दैट यू वुड हैव अंडरस्टूड द स्ट्रक्चर ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. अब देखा जाए क्या होता है. एज सून एज यू कनेक्ट दीज टू इलेक्ट्रोड्स, एनोड एंड कैथोड थ्रू द वायर, जैसे ही कनेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हियर नो डाउट, बट इट सर्वाइव ओनली फॉर अ फ्यू मोमेंट, जस्ट फॉर अ मोमेंट, एंड एट वंस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गेट स्टॉप्ड. ऐसा क्यों होता है? तो पहले इसको समझ लिया जाए, तो उसके बाद फिर हम लोग समझते हैं सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज होता है क्या और क्या फंक्शन होता है. सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस इनिशियली इन दिस ऑक्सीडेशन ऑफ सेल. ऑक्सीडेशन रिएक्शन इज गोइंग ऑन, जिंक आयन आर रिलीजिंग इनटू द सॉल्यूशन. So because of that one, the mass of the zinc rod is going to reduce, mass उसका कम हो रहा है, it loses its weight, but the concentration of zinc ion in the solution is going to increase, क्योंकि already इसमें zinc ion है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट है, जिंक आयन प्रेजेंट है, और रॉड से भी जिंक आयन इसमें आ रहे हैं. सो मींस एक्सेस ऑफ जिंक आयन इज गोइंग टू रिड्यूस इनटू द ऑक्सीडेशन हाफ सेल. अब इससे क्या होता है कि धीरे धीरे जिंक आयन जो जिंक रॉड से आ रहे हैं, they start to accumulate around this rod. ये इसके चारों तरफ accumulate करने लगते हैं. Likewise, reduction half cell में कॉपर सल्फेट से कॉपर आयन है, ये कॉपर आयन क्या हो रहा है, मूव कर रहे हैं कैथोड की तरफ, रिसीव द इलेक्ट्रॉन एंड गेट डिपॉजिटेड ऑन द कॉपर रॉड. तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे
सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी यहाँ पे एज कम्पेयर टू कॉपर आयन इंक्रीज होने लगेगी। कॉपर आयन की यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, लेकिन सल्फेट आयन क्या हो जाएगा, कॉपर आयन के कंपैरिजन में इंक्रीज करेगा। तो दैट्स व्हाई द सॉल्यूशन में सल्फेट आयन ज्यादा हो जाएंगे और ये सल्फेट आयन इस रॉड के चारों तरफ एक्यूमुलेट होने लगता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये सॉल्यूशन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो गया और यहाँ पे सॉल्यूशन क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया, क्योंकि सल्फेट आयन यहाँ पे ज्यादा हो गया। Because of it, what happens when the zinc ion accumulate around the zinc rod, no more electron can be come into the solution. क्योंकि ये चारों तरफ जिंक आयन हो गए हैं, इलेक्ट्रॉन कैन नॉट कम इनटू द सॉल्यूशन फ्रॉम जिंक रॉड। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या हो गया, स्टॉप। सेकेंड हाफ सेल में क्या देखना है, कॉपर आयन जब यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है तो सल्फेट आयन जो है ये रॉड के चारों तरफ एक्यूमुलेट हो जाते हैं। तो जब सल्फेट आयन एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो क्या कॉपर आयन यहाँ पे जाके रिड्यूस हो सकता है, नहीं। सो इट मीन रिडक्शन भी यहाँ पे स्टॉप हो गया। सो इन द ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन नो ऑक्सीडेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस, इन द रिडक्शन हाफ सेल नो रिडक्शन इज गोइंग टू टेक प्लेस। सो व्हाट डज इट मीन, नो करंट विल फ्लो, करंट फ्लो नहीं करेगा एंड द सेल इज गोइंग टू स्टॉप। बट हमको तो कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। सो ये कैसे होगा, फॉर दैट वन वी आर यूजिंग द सॉल्ट ब्रिज। अब सॉल्ट ब्रिज को ध्यान से समझिएगा। सॉल्ट ब्रिज इज एक्चुअली द इन्वर्टेड यू ग्लास ट्यूब को हम सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, क्योंकि ये दो हाफ सेल के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है, ये दो हाफ सेल को कनेक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई इसको हम लोग ब्रिज कहते हैं। और सॉल्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम लोग we fill the neutral electrolyte का concentrated solution in semi solid form में fill करते हैं, तो that's why that is the salt। तो इसको salt bridge कहा जाता है। Now what is the function, why do we connect it, why do we use it? First of all, salt bridge जैसा हमने बताया it is an inverted U-tube, glass U-tube। इसमें हम लोग न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट लाइक KCl, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, पोटेशियम नाइट्रेट हो गया या अमोनियम नाइट्रेट हो गया, इसको हम लोग यूज करते हैं। मेनी मोर आर देयर बट these आर वेरी मच कॉमनली यूज्ड। सो these आर द सॉल्ट एंड these आर द इलेक्ट्रोलाइट, और ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट है। इसको क्या किया जाता है, इनका कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन बनाया जाता है। कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन को अगर एक एल्गी प्रोडक्ट लेंगे, इसके साथ इसको हीट किया जाता है या फिर जिलेटिन के साथ, ये जेली होता है, जिलेटिन के साथ इसको अगर हम हीट करेंगे, सो द कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ दिस सॉल्ट कन्वर्ट इनटू द सेमी सॉलिड फॉर्म। वो सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाते हैं, वो सेमी सॉलिड फॉर्म को इस ट्यूब में फिलअप किया जाता है। सेमी सॉलिड का मतलब इजीली फ्लो नहीं करेगा, बट इवन देन व्हाट डू वी डू, ये दोनों माउथ जो है ट्यूब के, इनको हम कॉटन प्लग से क्लोज कर देते हैं। कॉटन प्लग क्यों लेते हैं, क्योंकि कॉटन इज पोरस होगा, तो जब हम इसमें इसको डिप करेंगे तो सबसे पहले ये जेल को या सॉल्ट को इसमें फॉल नहीं होने देगा। एट द सेम टाइम पोरस होने के चलते क्या होगा, आयन का मूवमेंट इजीली होने लगेगा। सो दैट इज द सॉल्ट ब्रिज। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, इसको देखा जाए। सॉल्ट ब्रिज के दो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। सबसे पहला फंक्शन फिजिक्स में पढ़ते ही हैं, करंट सप्लाई तब तक नहीं होगा जब तक कि सर्किट कंप्लीट ना हो एक सर्कुलर फॉर्म में। पहले उन्होंने क्या देखा था, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही थी ओनली हाफ डायरेक्शन या हाफ वे में, यहाँ से जो यहाँ पे जा रहा है इंटरनल सर्किट कंप्लीट नहीं था। सो सॉल्ट ब्रिज क्या कर रहा है, सर्किट को कंप्लीट करता है। सॉल्ट ब्रिज कंप्लीट द सर्किट, नोट्स में लिखा हुआ है, आप लोग देखिएगा उसको। It complete the external as well as the internal circuit. External तो है ये complete, ये internal circuit को complete कर देता है। Because of that one, there will be the continuous flow of current. Second, सॉल्ट ब्रिज का सेकंड काम है दोनों हाफ सेल में इलेक्ट्रोलाइट की न्यूट्रलिटी को मेंटेन करना। इनिशियली क्या था यहाँ पे, Zn2+ एंड सल्फेट आयन,
दोनों के चार्जेस बराबर थे, तो दैट द सॉल्यूशन वाज न्यूट्रल एंड लाइकवाइज इन दिस केस। लेकिन व्हेन दीज टू वर कनेक्टेड बाय मींस ऑफ द इलेक्ट्रिक वायर, तब क्या हुआ यहाँ पे, इसमें जिंक आयन का आना शुरू हुआ, तो जिंक आयन की संख्या सल्फेट को क्या करने लगी, एक्सीड करने लगी, तो ये सॉल्यूशन पॉजिटिव हो गया, यानी कि इसकी न्यूट्रलिटी लॉस्ट हो गई। लाइकवाइज यहाँ पे क्या देखने, कॉपर रॉड पे आके डिपॉजिट होने लगा, तो कॉपर आयन की संख्या कम हो गई और यहाँ पे सल्फेट आयन की संख्या क्या हो गई, ज़्यादा हो गई, यानी नेगेटिव चार्ज है मोर एज कम्पेयर टू द पॉजिटिव चार्ज, तो इसकी भी न्यूट्रलिटी क्या हो गई, लॉस्ट हो गई, खत्म हो गई। जबकि कंटिन्यूस फ्लो करने के लिए इनकी न्यूट्रलिटी मेंटेन होनी चाहिए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड फॉर दैट वन द शॉर्ट ब्रिज प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। कैसे करता है, अब यहाँ पे जैसे हम लोग KCL का एग्जाम्पल लें। अच्छा, दूसरी चीज, ये सॉल्ट जो है दे आर न्यूट्रल, इनकी कंडीशन ये होनी चाहिए या इनकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, दिस शुड नॉट रिएक्ट विद दिस इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के साथ इनकी कोई रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, एंड साइमल्टेनियसली दिस शुड नॉट रिएक्ट विद द रॉड टू, मेटल रॉड के साथ भी रिएक्शन नहीं होनी चाहिए। दैट्स व्हाई हमने क्या कहा था इसको, न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट, मीन दे आर नॉट रिएक्टेड टू द इलेक्ट्रोलाइट इन द हार्ड सेल, सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट उससे भी रिएक्ट नहीं करेगा और साथ साथ ये रॉड से भी रिएक्ट नहीं करेगा। ओके, नाउ लेट मी टेक एग्जांपल ऑफ KCl। KCl क्या है, जेल के फॉर्म में है, it dissociate into the potassium ion and chloride ion। इस सेल में क्या हो रहा है, जिंक आयन की संख्या बढ़ रही है, जिंक आयन की संख्या बढ़ रही है और उसकी न्यूट्रलिटी लॉस्ट हो गई है, तो क्या होगा, शॉर्ट ब्रिज से क्लोराइड आयन जो होगा वो इसमें आना शुरू हो जाएगा, the chloride ion will start to move into this half cell through the cotton plug, क्योंकि cotton plug porous होता है, तो यहाँ पे क्लोराइड आयन शुरू होना, ये आना शुरू हो जाएगा और तब तक आएगा जब तक कि टोटल पॉजिटिव चार्जेस और नेगेटिव चार्जेस ऑफ क्लोराइड आर गोइंग टू बी इक्वल, यानी जब तक इसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन नहीं हो जाती तब तक क्लोराइड आयन का इधर फ्लो होता रहेगा। बिल्कुल इसी तरह से रिडक्शन हाफ सेल में यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज लेंगे पोटेशियम आयन, दिस पोटेशियम आयन विल स्टार्ट टू मूव इनटू द सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो सल्फेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन को बैलेंस करने के लिए पोटेशियम आयन यहाँ से मूव करना शुरू करते हैं और तब तक मूव करेंगे जब तक कि सल्फेट आयंस को ये न्यूट्रलाइज नहीं कर देगा, एंड इन दिस वे व्हाट हैपेंस, द न्यूट्रलिटी ऑफ दीस टू इलेक्ट्रोलाइट इज रिस्टोर्ड, ये फिर से मेंटेन हो जाती है, और जैसे ये मेंटेन होता है हम देखते हैं कि यहाँ पे फिर से करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। So that is the important function of the salt bridge. Is it clear? अच्छी तरह से समझ में आ गया आपको? नहीं समझ में आया तो इसको फिर से चला के आप समझ सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर कहीं कोई डाउट हो, you can ask me the doubt, putting your doubt into the comment box में लिख के आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। तो जैसे ही सॉल्ट ब्रिज अप्लाई किया जाता है, इंटरनल सर्किट गेट कंप्लीटेड एंड द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ हो रहा है, तो एज पर द कन्वेंशन द करंट स्टार्ट टू फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट का फ्लो होना शुरू हो जाता है। ना ये नीचे में एक हमने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में इसके 3 डायग्राम दिए हुए हैं, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसा बताया था कि जैसे हम लोग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, जैसे कनेक्ट किया जाता है कुछ समय के बाद क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो जाता है। यदि सेल में हम यहाँ पे एक एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते हैं एंड द वैल्यू ऑफ दैट पोटेंशियल इज लेस देन 1.1 वोल्ट, और धीरे धीरे अगर इंक्रीज करते हैं सो द करंट विल फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड कंटिन्यूअसली। द मोमेंट द पोटेंशियल एक्सटर्नल पोटेंशियल की वैल्यू 1.1 वोल्टेज इक्वल हो जाती है, यहाँ पे अगर ये E एक्सटर्नल इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट, देयर विल बी नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी। और यदि इसको हम एक्सटर्नल पोटेंशियल को यदि हम एक्सटेंड कर दें ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट कर दें, इस केस में क्या था, द प्रोसेस वाज स्पॉन्टेनियस, केमिकल
इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे तो बंद ही हो जा रहा है। लेकिन नेक्स्ट केस में where external potential value exceed the 1.1 volt, then the process is also going to reverse. Means the spontaneous process convert into non-spontaneous process. In this case, the electrical energy will start to convert into chemical energy. So these three conditions are there. So to get the continuous supply of energy, in general, we have to keep the voltage of the cell less than the external potential. एक्सटर्नल पोटेंशियल से कम रहेगा तो हमें वहाँ पे इलेक्ट्रिक सप्लाई कंटिन्यू होती रहेगी. सो दैट इज अबाउट द कंप्लीट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. नाउ दिस सेल इज कॉल्ड एज गैल्वेनिक सेल और इट इज आल्सो कॉल्ड एज द मॉडर्न वर्जन ऑफ दिस वन इज द डैनियल सेल इज आल्सो कॉल्ड एज गैल्वेनिक सेल. इसको वोल्टेइक सेल भी कहते हैं. So that you have to remember. Now I am going to rub the diagram now. Now यानी यहाँ पे क्या देखा हम लोगों ने, जिंक कॉपर सेल हो गया. अब जिंक कॉपर सेल में यदि हमें कैसे शो करेंगे कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो किधर से हो रहा है, तो इन सब चीज के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एंड दैट इज द सेल नोटेशन और सेल फॉर्मूला. यानी कि पूरे डायग्राम को हम लोग एक बहुत सिंपल फॉर्मूले में या नोटेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट अंडर द सर्टेन रूल. जैसा कि 11th में IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ा, बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पे भी है कि IUPAC ने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के फॉर्मूले को कैसे डिराइव किया जाएगा, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, अंडर द सर्टेन रूल इट इज फॉलोड. उसको हम लोग इस रूल के अंडर में फॉलो करते हैं. तो लेट्स सी कैसे किया जाता है. एज पर द कन्वेंशन हाफ सेल को हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है जहाँ पे कि ऑक्सीडेशन होता है. द हाफ सेल इन विच ऑक्सीडेशन इज कैरीड आउट और द एनोड होता है, उस केस में इसको रिप्रेजेंट किया जाता है. इलेक्ट्रोड को मेटल के साथ रिप्रेजेंट करेंगे. आफ्टर दैट वी पुट द हाइफन, एक हाइफन यहाँ पे लगाते हैं एंड देन वी रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन. इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन किसका है? जिंक सल्फेट का है. सल्फेट तो यहाँ कॉमन हो जाता है दोनों तरफ, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? जिंक आयन एक्वस फॉर्म में. तो यानी ये जिंक आयन एक्वस फॉर्म में. एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है जिंक सल्फेट की दैट इज 1 मोलर. तो बिकॉज The generation of electricity depends upon the concentration of electrolytic solution. तो ये यहाँ पे मेंशन करना बहुत जरूरी होता है कि इस इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है. तो दैट्स व्हाई ब्रैकेट में यहाँ पे अभी हम लोग C लिख सकते हैं. C मीन्स कॉन्सेंट्रेशन. अदरवाइज यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखेंगे 0.1 m 0.00 m व्हाटएवर लिखेंगे, वो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन लिखा जाता है. तो यहाँ पे फिलहाल अभी हम लोग C का यूज करते हैं. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एनोड. तो एनोड के केस में, ऑक्सीडेशन ऑफ सेल के केस में मेटल को पहले लिखा जाता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को बाद में लिखा जाता है. अब आते हैं हम लोग कैथोड. कैथोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैथोड का मतलब जिस पे रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन ऑफ सेल, उस केस में पहले हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है. तो ये रिड्यूस होगा किसमें? मेटल में. इसलिए यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को लिखते हैं दैट इज इन एक्वस फॉर्म. यहाँ पे भी एक्वस लिखा जाएगा और फिर यहाँ पे concentration and then hyphen and then metal in solid form. So this is the anode and this is cathode. ये तो हो गया एनोड एंड कैथोड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा. अब आता है इसका फॉर्मुलेशन कैसे होगा. हाउ डू वी राइट द फॉर्मूला? एज पर द IUPAC रूल, गाइडलाइंस और कन्वेंशन, एनोड को हमेशा लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, कैथोड को हमेशा राइट साइड में लिखा जाता है. तो एनोड ये हो गया Zn/Zn2 प्लस एंड कैथोड इज कॉपर आयन / कॉपर सॉल्ट. अब यहाँ पे
ये दोनों हाफ सेल तो कंप्लीट हो गए. दिस इज द ऑक्सीडेशन हाफ सेल एंड दिस इज द रिडक्शन हाफ सेल. ये हो गया एनोड एंड दिस इज कैथोड. जैसा पहले मैंने डिस्कस किया था, इट इज पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज. यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गया और यहाँ पे रिडक्शन हो गया. लेकिन एक चीज मिसिंग है यहाँ पे, सॉल्ट ब्रिज. सॉल्ट ब्रिज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? क्योंकि दो हाफ सेल को ये ब्रिज जो है कनेक्ट कर रहा है. So that's why इन दोनों के बीच में सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट किया जाता है एंड दैट इज बाय टू वर्टिकल लाइंस. इन दोनों के बीच में दो वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देते हैं, दैट रिप्रेजेंट द सॉल्ट एंड दिस इज द सेल नोटेशन और सेल फॉर्मूला ऑफ दिस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ये न्यूमेरिकल में पूछा जाता है. राइट द सेल नोटेशन ऑफ द सेल फॉर्मुलेशन एंड आफ्टर दैट न्यूमेरिकल सॉल्व करना पड़ता है. तो इसकी प्रैक्टिस और होनी चाहिए. सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, सॉल्ट ब्रिज एंड द सेल फॉर्मुलेशन. नेक्स्ट पार्ट हम लोग फिर बाद में